Today, in the revision of the subject intellectual property right OEC 1, we will discuss about the unit second. The syllabus of the unit second is the introduction to the patent, overview, historical development, concept, novelty, and utility. In the last class, we discussed about the patentability requirement, novelty, and utility. Next is the patentable subject matter. What are the non-patentable subject matter we will discuss today? And the Patent Act 1970, amendment of the 1919, 2000, 2002, and 2005. Pharmaceutical products and process and patents. Software patents, business methods, and the protection of the plant variety and the Farmers' Right Act 2001, patenting of the microorganism. Hence, we will discuss about the what are the matters which are patentable, what are the matters which are non-patentable subject matter is there. Hence, any invention may satisfy the condition of the novelty, inventiveness, and usefulness, but it may not qualify for a patent. The following are not invention within the meaning of the section 3 of the Patent Act 1970. ये सारे जो हैं आपको सेक्शन 3 के बारे में वो इन्वेंशन नहीं माने जाएंगे, ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है. An invention which is frivolous or which claims anything obviously contrary to well established natural law. किसी नेचुरल लॉ का कंट्रेरी कोई इन्वेंशन आपको रहेगा तो वो आपको इन्वेंशन नहीं कहलाएगा. एन इन्वेंशन द प्राइमरी और इंटेंडेड यूज और कमर्शियल exploitation of which could be contrary to public order or mortality of which causes serious prejudice to human, animal or plant life or health or the environment. कोई भी इन्वेंशन जो आपको कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करता है इन द पब्लिक ऑर्डर ऑफ द मोरलिटी विच कॉजेस सीरियस प्रोड्यूस टू द ह्यूमन को हानि पहुंचाता है, एनिमल, प्लांट लाइफ और हेल्थ और द एनवायरमेंट, वो आपको नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर में आएगा, है ना. कोई भी जो कॉजेस सीरियस प्रोड्यूस टू द ह्यूमन, एनिमल, प्लांट लाइफ, हेल्थ और एनवायरमेंट. The mere discovery of the scientific principle or the formulation of an abstract theory or discovery of any living thing or non-living substances occurring in nature. कोई भी discovery, scientific principle or formation of the abstract theory or discovery of any living thing, कोई भी discovery of the any living thing or non-living substances occurring in the nature, वो उसके बारे में दिखाएगा. The mere discovery of the new form of the non-substance which does not result in the enhancement of non-efficacy of that substance, or the mere discovery of any property or mere new use for a non-substance of the mere use of the non-process machine or apparatus, unless such non-process result in a new product or implies at least one new reactant. Explanation to the clause clarifies that salt esters polymorphous metabolist pure form particle size isomers mixture of the isomers complexes combination and other derivation of the non-substance shall be considered to be the same substance unless they differ significantly in property with regard to the efficacy. A substance obtained by the mere
admixture resulting only in the aggregation of the property of the components thereof or a process producing such substance. ये जो है आपको नहीं है. The mere arrangement or rearrangement of the duplication of noun devices such as a functioning independently of one another is noun way. किसी भी डुप्लीकेशन का, किसी भी डिवाइसेस का, इक्विपमेंट का जो फंक्शन कर रहा है उसका डुप्लीकेशन, रीअरेंजमेंट, मेयर अरेंजमेंट आपको वो पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर आपको नहीं होगा, है ना. ए मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और द हॉर्टिकल्चर, ये एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का मेथड वो आपको पेटेंटेबल नहीं है. एनी प्रोसेस ऑफ मेडिसिनल, सर्जिकल, क्यूरेटिव, पोरिप्लाटिक, डायग्नोस्टिक, थेरेपेटिक or other treatment of the human being and any process of the similar treatment of animals to render the free disease or to increase their income value or that of their products, है ना. कोई भी प्रोसेस जो मेडिसिनल है, सर्जिकल है, क्यूरेटिव है, अदर ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स है और एनी प्रोसेस फॉर द सिमिलर ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल्स है, फ्री ऑफ द डिजीज है, उसके बारे में आपको ये आपको नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर आएगा. प्लांट्स एंड एनिमल इन द होल और एनी पार्ट देयरऑफ अदर देन अ माइक्रोऑर्गेनिज्म बट इंक्लूडिंग सीड्स, वैरायटी एंड स्पीशीज, essentially biological process for production of the propagation of the plant and animals, ये आपको जरूरी है ना. including the seeds, variety and especially biological process for the production, propagation of the plant and animal. A computer program per se other than its technical application to industry or a combination with the hardware, ये आपको non patentable है. A literary, dramatic, musical or artistic work or any other aesthetic creation whatsoever including cinematographic works and television productions, ये आपको नॉन पेटेंटेबल है ना. तो दीज आर द मैटर्स विच आर द नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर है. ए मेयर स्कीम और रूल और मेथड ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट और मेथड ऑफ प्लेइंग गेम, ए प्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, topography of the integrated circuit, and innovation which in effect is traditional knowledge or which an aggregation or duplication of non-property of the traditional non-component or component. ये सारे नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर हैं. सेक्शन 4 prohibits the grant of patent in respect of the invention relating to the atomic energy falling with a subsection of the 20 of the Atomic Energy Act 1962. Section 20 of the Atomic Energy Act 1962 contains a special provision relating to the invention. Under Section 21 of Atomic Energy Act, no patent shall be granted for invention which in the opinion of the central government are useful or relate to the production, control, use or disposal of the atomic energy for postponing minimum mining, extraction and production, physical and chemical treatment, fabrication, enrichment, canning or use of any prescribed substance or radioactive substance for the ensuring of the safety in the atomic energy operation. Atomic energy ऑपरेशन का ये सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको रूल है. नो पैटेंट शैल बी ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन. एटॉमिक एनर्जी का, किसी भी एटॉमिक एनर्जी का प्रोस्पेक्टिंग के लिए, माइनिंग के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, फिजिकल के लिए, केमिकल ट्रीटमेंट के लिए. हाँ बोलिए. एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 यही कहता है कि रिलेटिंग टू द इन्वेंशन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी, कोई भी चीज उसका आप उसका पेटेंट नहीं करा सकते. रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं एटॉमिक एनर्जी एक्ट का. तो एटॉमिक एनर्जी का कोई भी चीज या तो आप माइनिंग, एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, फिजिकल, केमिकल, कोई भी चीज आप उसका नहीं करा सकते हैं. ये पब्लिक यूज में नहीं हो सकता है. ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है. तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट में आपको ये दिया हुआ है कि ये आपको नॉन पेटेंटेबल
सब्जेक्ट मैटर है, तो नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर को आप ध्यान से देख लीजिए, व्हाट आर द नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर है, और ये सारे मैटर आप उसको पेटेंट नहीं करा सकते हैं। डुप्लीकेशन, रीअरेंजमेंट of the noun devices which is invalidly of one another is a noun way, है ना। A substance mere demixture, admixture of resulting only the aggregation of the property of the component thereof, a process of producing substance, ये आप नहीं करा सकते हैं। The mere discovery of the new form of the non substance, ये आप पार्टिकल साइज, पॉलीमर्स, ईस्टर्स, ये आप जो है नॉन सब्सटेंस का नहीं करा सकते हैं। ये सारे नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर है ना। दीज आर द नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर। एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 आपको दिया हुआ है। 1962 के एक्ट के तहत एटॉमिक एनर्जी का कोई भी चीज आप उसको पेटेंट नहीं करा सकते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है ना। तो ये सारे नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर है। अब मैं अटेंडेंस ले लूं, फिर उसके बाद आगे आपका बढ़ेंगे। आकाश पवार जी 03, अंकित शर्मा जी 06, चंदन शाह 08, हृदय 19, जितेंद्र राणा जी 23, ऋषभ नायक जी 54, हिमांशु पुंडीर जी 18, जैनेश चौहान जी 22, रौनक कुमार जी 39, शेखर जी 41। दस पार्टिसिपेंट आए हुए हैं। आकाश पवार जी 03, अंकित शर्मा जी 06, चंदन शाह जी 08, हृदय जी 19, जितेंद्र राणा जी 23, ऋषभ नायक जी 54, हिमांशु पुंडीर जी 18, जैनेश चौहान जी 22, रौनक कुमार जी 39 एंड शेखर कुमार जी 41। ये 10 पार्टिसिपेंट्स आपके आए हुए हैं एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूनिट 2 ऑफ द सिलेबस, रिवीजन ऑफ द सिलेबस ऑफ द यूनिट 2। ये आपका नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर है जो कि पेटेंट नहीं कराया सकता है। नाउ कम टू द पेटेंट एक्ट 1970, है ना। पेटेंट एक्ट 1970 का साइलेंट फीचर्स आपको दिए हुए हैं, है ना। 16 आपके फीचर्स हैं पेटेंट एक्ट 1970 का, है ना। ये आपके फीचर दिए हुए हैं। इंडियन पेटेंट एक्ट पोस्ट 3 अमेंडमेंट्स है ये। द फर्स्ट इंडियन पेटेंट लॉ वेयर फर्स्ट promulgated in 1856. These were modified from time to time. New patent law were made after the independence in the form of Indian Patent Act 1970. The act has now been radically amended to become fully compliant with the provision of the TRIPS. The most recent amendment was made in the 2005, which were preceded by the amendment in the 2000 and 2003. इंडिया बिकम सर हेलो। हाँ बोलिए सर, अगर आप चैप्टर वाइज नोट्स बना के भेज दें तो अच्छा होगा सर। अरे तो आप कौन बोल रहे हैं, क्या नाम है? कार्तिक सर। कार्तिक जी, ये आपका चैप्टर वाइज ही है, आपने ध्यान से देखा नहीं है सर ये पीडीएफ थोड़ी आगे पीछे हो रही है सर।
कहाँ आगे पीछे हो रही है? आपको मैंने आप अभी तो पढ़ा रहे हो सर, आप तो पढ़ा रहे हो, जब आपने भेजी है ना सर वो पीडीएफ आगे पीछे हो रही है। नहीं समझ में आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो है पूरा आपको एक लाइन से आपको यूनिट 1 यूनिट 2 आपको दिया हुआ है और एक एक चीज आपको दिया हुआ है। जैसे आपको एक एक जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट आपको बनाया हुआ है। बात आई नहीं समझ में? ये कंप्लीट बुक जो है मेरी लिखी हुई है और ये अकॉर्डिंग टू द वाईएमसीए का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। आपको कहाँ दिक्कत आ रही है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपको हो सकता है यूनिट 5 में कौन से यूनिट में आपको दिक्कत आ रही है? कौन से यूनिट में सर आपको अब दिक्कत आ रही? कौन से यूनिट मैंने में अभी आपको? पहली यूनिट ही पढ़ी है सर थोड़ी सी। तो पहले यूनिट तो पूरा आपको जो मैंने आपको वो भेजा था तो आज फिर मैं आपको शेयर कर देता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ। बिल्कुल जो ठीक है है सर। आपको आपको बिल्कुल मैं यूनिट फर्स्ट का ही मैं आपको आज फिर व्हाट्सएप कर देता हूँ। वो ठीक है सर। बिल्कुल जो है डिट्टो आपके वाईएमसीए का जो सिलेबस है, वाईएमसीए का ठीक है जो सर। सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग लिखा गया है ना? ठीक है सर। हाँ, टोटल वो वाईएमसीए के सिलेबस है उसको मैं आपको यूनिट 1 का फिर से आपको सर वाईएमसीए सर, ये पेपर कितने का आएगा सर, आउट टू पेपर जो आएगा अब यूनिवर्सिटी का इस बार जो आएगा? 75 मार्क्स का है। सर नहीं सर, ऐसा ऐसा तो बोल रहे हैं इस बार 25 50 नंबर का है। मेरे आप पास सर एक वो देखिए, आया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। नहीं मैं मैं अभी आपको जो मतलब ग्रुप पे आपका डालता हूँ। सिलेबस में है वो मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जो क्या आया है कोरोना में, ये क्या कर रहे हैं ये हमें जानकारी नहीं है कि ये क्या करेंगे नहीं करेंगे। हम लोग को इस बारे में कॉलेज से कोई अभी इंफॉर्मेशन नहीं आया है। बात है नहीं समझ में? तो हम उसके बारे में नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपका सिलेबस में है वो आपको 75 मार्क्स का आपको थ्योरी पेपर है और सेशनल मार्क्स जो है 25 मार्क्स का है ना? तो 75 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा और 3 क्रेडिट्स का आपको ये आपको आपको सब्जेक्ट है ना? तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें दोबारा मैं रिवीजन करा रहा हूं इसीलिए आपको इसमें सब्जेक्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसका असाइनमेंट जो है दूसरे जो यूनिट का वो असाइनमेंट आप कीजिए, असाइनमेंट से ही आपके क्वेश्चन आएंगे, है ना? असाइनमेंट से ही आपके जो है क्वेश्चन आएंगे। और आपको मैं यूनिट 1 का जो आपका लेक्चर नोट्स है फिर मैं आपको दोबारा आपको भेज देता हूं। वो बिल्कुल वाईएमसीए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो आपको जो है प्रिपेयर किया गया है। दूसरा बुक भी मार्केट में नहीं है जो वाईएमसीए सिलेबस के अकॉर्डिंग ग्रुप आपको पे भेजा है, आप चेक कर लीजिएगा। है। क्या कह रहे कार्तिक जी? मैंने सर ग्रुप पे एक भेजा है फोटो, उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है सर, देख लीजिए एक बार आप। अच्छा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपने भेजा है ग्रुप में? अच्छा, हाँ तो सर, आप ये चेक करिए अभी सर एक बार ग्रुप पे। अभी जो एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। हाँ अच्छा, सर, ये 11 नवंबर को भेजा था यूनिवर्सिटी ने सर, ऐसा कुछ है, देख लीजिए आप एक बार। 11 नवंबर को भेजा हुआ है। तो 11 नवंबर, आज तो 9 ही नवंबर है। अक्टूबर सर हमारा कॉलेज में ना, कॉलेज में सर जो हमारे टीचर या मैनेजमेंट है ना सर, वो बहुत बड़े वाले हैं सर। उन्हें ये कुछ ये तो पता नहीं है सर यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है सर, हाँ वही पेपर क्या हो तो, रहा है, क्या वो चल रहा है सर, वही बस कुछ क्या कुछ। चल रहा है नहीं चल रहा है कुछ सर री इनके के पास। फॉर्म निकल गए हैं सर, ये नहीं पता किसी को कब तक लास्ट डेट है, कब तक भरा जाना है सर। हाँ वही तो एक दिक्कत दूसरे है। टीचर का नाम ले रहे हैं कि इससे पूछ लो, इससे पूछ असल में ये सैलरी देते नहीं है तो कोई स्टाफ टिकता नहीं है, डायरेक्टर है नहीं। तो कोई कोऑर्डिनेशन के लिए यूनिवर्सिटी से रहेगा तभी तो करेगा। ये चाहते हैं सारा चीज फ्री में हो जाए, लो। जी सर। तो कहाँ से होगा वो? ये चाहते हैं कि सब चीज जो है हमें यूनिवर्सिटी का कोई कोऑर्डिनेशन के लिए, यूनिवर्सिटी से कोऑर्डिनेशन के लिए, वहां से इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो आपको कोई रहेगा तभी तो, हाइट है, डायरेक्टर है ही वो नहीं कॉक उठा ले कॉलेज कॉक, में। और खेलेंगे, आजा नीचे नीचे खेलेंगे। तो दिक्कत यही है और कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ कोऑर्डिनेशन। ठीक है सर। ये चाहते हैं कि साहब हमें जो है ऐसे ही जो है एप्लीकेशन दे दे, ये दे दे, ऐसा कहीं होता है? रेगुलेशन है सबके। तो दिक्कत यहीं से आ रही है। दिक्कत वही है, दिक्कत आपको बात जी सर। दिक्कत यहीं से आ रही है, सब चीज रेगुलेशन है।
ठीक है, वो कॉलेज का मामला है, तो मैं मार्क्स देख लूंगा कितने का होगा, मैं सर व्हाट्सएप। ये समझ में नहीं आ रहा सर, एग्जाम 25 का होगा या 50 का होगा? अभी कुछ दिन पहले 50 का आया था एक नोटिफिकेशन। हाँ, वो चीजें सबको कम्युनिकेट होनी चाहिए ना, अब सभी स्टूडेंट्स को पता होना जी चाहिए सर, कौन यूनिवर्सिटी में क्या हो 25 रहा है, नंबर का नहीं होगा हो तो रहा है। कैसे पासिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होगा सर? हाँ, यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसका इंफॉर्मेशन जो है सभी को, सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए, कब क्या एग्जाम जी होगा। सर। और यूनिवर्सिटी वाले से पूछते तो यूनिवर्सिटी वाले भी क्यों सीधा सीधा बोलेंगे, जो हमारे पास टीचर है, मैनेजमेंट है। तो यूनिवर्सिटी वाले तो बोलेंगे ही ना, तो वो तो कोऑर्डिनेशन के लिए कॉलेज से रहना चाहिए, तो वो कॉलेज से रहना जी चाहिए ना सर। कोऑर्डिनेशन के लिए। तो कॉलेज से कोऑर्डिनेट करेगा, वो कोऑर्डिनेट जो इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी से आ रही है वो सबको जो है ट्रांसफर करेगा। तो ये सब जो देखता कौन है सर, ये बताइए? ये सब यूनिवर्सिटी से जो आती हैं डाटा वाटा या फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं, कौन देखता है सर? अभी सिंधु कुमार देख रहा है। तो सिंधु सर तो उन्होंने कह दिया अमित सर है, अमित सर कह रहे हैं शीतल हाँ, तो सर है। वही तो बोल शीतल रहे सर हैं फोन नहीं उठा रहे। भाई, आप जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की दी नहीं है, डायरेक्टर है नहीं, डायरेक्टर को उस सैलरी मिला नहीं, 5-6 महीने रहा फिर छोड़ के चला गया वो। तो आप जो है किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं है, तो वो राम भरोसे कि भैया धर्म के नाम पे जो करना है कर दो, तो ये इसका नाम लेता है, वो उसका नाम में लेता है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं किसी की। तो मेन तो कोऑर्डिनेशन तो यूनिवर्सिटी से कौन करेगा, लिंक करेगा, वो इंफॉर्मेशन लेगा, फिर वो सारे स्टाफ को भेजेगा, तभी तो होगा। नीचे नीचे खेल ले नीचे। यस सर। वो यूनिवर्सिटी से टाई अप रखना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी में क्या डिसीजन होता है, यूनिवर्सिटी से सारा उसके रूल रेगुलेशन सारे उसको क्लियर करने पड़ेंगे, तभी तो होगा। तो अभी तो एग्जाम वगैरह का तो यस सर, यस सर। जहां तक हमें जानकारी है कि सिंधु कुमार ही जो है वो कर रहे हैं, सिंधु कुमार जी ही वो एग्जाम के बारे में वो कर रहे हैं। तो मैं आज उसको फोन करके पूछता हूँ कि भाई आपका क्या स्कीम चल रहा है, क्या एग्जाम का चल रहा है। तो वो नोटिस स्टाफ को भेजेगा, ग्रुप में लड़कों को भेजेगा, वो तो जानकारी चाहिए ना स्टूडेंट को कि कितने का एग्जाम होगा। यस सर, और ये भी तो होना चाहिए सर, री के कब होंगे फॉर्म? हाँ, वो बता कब नहीं रहे भरना है ना। सर री का फॉर्म? और री का क्या प्रोसीजर है, कितने मार्क्स का होगा, क्या होगा सर? कुछ आप क्लियर नहीं बता रहे सर। आप घंटा सिंधु फीस कुमार लेते को हैं सर फोन ये। करिए, सिंधु कुमार जी तो को फोन सिंधु सर करिए। को कर दिया फोन, सिंधु सर कह रहे हैं मैं एमडीओ में हूँ, मेरे को अमित सर से बात करो। अमित सर कह रहे हैं शीतल सर से बात करो, शीतल सर कह रहे हैं, शीतल सर का फोन नहीं लग रहा। हाँ, तो वही तो दिक्कत है, मैं बोल नहीं रहा कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, कॉलेज वाले भागते हैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो ऐसे थोड़ी होता है वो। और सर आपको पता ही है सर, सुनील पांडे सर हॉस्पिटल में। हाँ, उसका उसका सुनने में आ रहा है कि उसका ऑपरेशन हुआ है। हाँ सर, हार्ट अटैक हो गया था उन्हें। हाँ, वो हाँ सुनने में तो यही आ रहा है। मतलब कॉलेज में कोई टीचर ही नहीं बचा सर अब। सिंधु ही कह रहा है कि मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ, उससे बात हुई है। तो सर वो तो एमडीयू में गए हैं। एमडीयू में कहा है, आज तो कॉलेज में ही है। मतलब कुछ काम से एमडीयू में थे वो। हाँ, तो किसी काम से भेजा होगा, एग्जामशन का काम, वही तो बोल रहा हूँ कि किसी एग्जामशन के काम से। वो तो यूनिवर्सिटी जाके पेपर लाने होते हैं, एक कोऑर्डिनेशन तो करने के लिए तो आपको यूनिवर्सिटी का वो सारा रहता है ना। यूनिवर्सिटी ऐसे थोड़ी देगी कि आप ये चाहते हैं कि बिना कोई कागज जमा किए, बिना कुछ किए वो हमको एफिलिएशन दे दे। यस वो सर। सारा रिकॉर्ड मांगता है कि भाई आपके यहाँ अभी जो सर हमारा बच्चे हैं, फोर्थ सेम आपके का यहाँ तो रिकॉर्ड गया नहीं है सर अभी तक। हाँ, वही वही तो दिक्कत है ना कि वहाँ कोऑर्डिनेशन के लिए एक चाहिए कि भाई यूनिवर्सिटी में उसको सारा चीज डाटा उसको जमा करे, और वहां से सारे कागजात उसका इंफॉर्मेशन वहां से ले। तो करना तो यूनिवर्सिटी को है, एग्जाम लेना यूनिवर्सिटी को है, कॉलेज तो अपने मन से ले ही नहीं सकती। तो लेना तो जब उसी को है, तो वो डाटा वगैरह सारा उसका जमा करे, फॉर्म वगैरह बच्चों का जमा करे, तभी तो होगा। कहाँ से होगा वो? कब कब निकल रहे हैं रीके, कब आ रहे हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन के लिए कि अब वो किसको लगा रखा है वो समझ में नहीं आ रहा है। वो पहले कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन था, वो भी छोड़ के चला गया। तो यही दिक्कत आ रही है ना। तो कोरोना में ये दिक्कत आ रही है, और फिर दूसरा इनका फंक्शनिंग स्टाइल कॉलेज वाले का अलग है। चलिए पेटेंट एक्ट 1970 के बारे में बात करते हैं। ये पेटेंट एक्ट 1970 है, द फर्स्ट इंडियन पेटेंट लॉ वेयर
promulgated in the 1856. पहला जो इंडियन पेटेंट लॉ था 1856 में बनाया गया था. These were modified from time to time. ये time to time आपको modify किया गया. New patent were made after the independence in the form of the Indian Patent Act 1970. है ना. न्यू पेटेंट लॉ जो इंडिपेंडेंस के बाद जो आया, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, ये आपका माइलस्टोन है पेटेंट लॉ में. इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के इंडिपेंडेंस के बाद जो पेटेंट बना है, यही आपको इंडियन पेटेंट एक्ट है. और इसके बाद जो हुए हैं, उसके बाद अमेंडमेंट हुए हैं. जो बेसिक माइलस्टोन है, यही इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 है. The act has now been radically amended to become fully compliant with the provision of the TRIPS. ये आपको जो provision of the TRIPS है, उसी के नाम पर के ये जो है आपको ये एक्ट आपको बनाया गया. The most recent amendment was made in the 2005. इस एक्ट का 1970 का सबसे हाल में जो अमेंडमेंट किया गया है वो 2005 में किया गया है, which are preceded by amendment in 2000 and 2003. उसके जो अमेंडमेंट है 2000 में भी किए गए हैं, 2003 में किए गए हैं. इंडिया become a member of the Paris Convention. पेरिस कन्वेंशन का वो मेंबर हुआ, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी का मेंबर हुआ, बुडापेस्ट ट्रीटी का मेंबर हुआ. द पेटेंट राइट इज टेरिटोरियल इन नेचर and inventors their assignee will have to file separate patent application in countries of their interest. है ना. तो इंडिया जो है पेरिस कन्वेंशन का भी मेंबर है, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी का मेंबर है, बुडापेस्ट ट्रीटी का मेंबर. द पेटेंट टेरिटोरियल, पेटेंट राइट जो होता है टेरिटोरियल होता है, वो कंट्री बेस होता है, वो रीजनल होता है. इन्वेंटर्स देयर असाइनी विल हैव टू फाइल सेपरेट पेटेंट एप्लीकेशन इन कंट्रीज ऑफ देयर इंटरेस्ट. है ना. ये हर एक कंट्री में पेटेंट एप्लीकेशन का वो आपको वो दिया गया, along the necessary fee for obtaining the patent in those country. कोई भी कंट्री में आपको पेटेंट लेना है, नेसेसरी फी के साथ में आपको पेटेंट फाइल करना पड़ेगा और पेटेंट लेना पड़ेगा. ए न्यू केमिकल प्रोसेस और ए ड्रग मोलेक्यूल और एन इलेक्ट्रिक सर्किट और ए न्यू सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट or a vaccine is patentable subject matter provided all the stipulation of law is satisfied. इसमें आपको पेटेंट एक्ट 1970 में आपको दिया हुआ है कोई नया केमिकल प्रोसेस और ए ड्रग मोलेक्यूल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और ए न्यू सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और ए व्हीकल, ये सारे पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर हैं जो कि आपको पेटेंटेबल लॉ से आपको कवर करते हैं. तो इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के ये सारे फीचर्स हैं. इलोबरेट डिफिनेशन ऑफ द इन्वेंशन, इन्वेंशन का डिफिनेशन को इलोबरेट किया. नो प्रोडक्ट पैटेंट्स फॉर सबस्टैंडर्ड इंटेंडेड फॉर यूज ऑफ द फूड, ड्रग्स एंड मेडिसिन इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल प्रोसेस. नो प्रोडक्ट पैटेंट फॉर सबस्टेंसेस, फूड, ड्रग, मेडिसिन इंक्लूडिंग द केमिकल प्रोसेस. कोडिफिकेशन ऑफ द सर्टेन इन्वेंशन एज ए नॉन पेटेंटेबल. है ना. कोडिफिकेशन जो है वो आपको नॉन पेटेंटेबल है. मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉरेन एप्लीकेशन, जो आपको मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन है वो आपको फॉरेन एप्लीकेशन के द्वारा जो है आपको खबर होता है. एडॉप्शन ऑफ द एब्सोल्यूट नोवेल्टी क्राइटेरिया इन केस ऑफ द पब्लिकेशन, जो पेटेंट एक्ट 1970 में आपको दिया हुआ है कि पब्लिकेशन के लिए आपको एब्सोल्यूट नोवेल्टी क्राइटेरिया आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा. है ना. एक्सटेंशन ऑफ द ग्राउंड्स फॉर अपोजिशन ऑफ द ग्रांट ऑफ द पेटेंट, तो ग्राउंड्स ऑफ फॉर द अपोजिशन टू द ग्रांट ऑफ द पेटेंट ये आपको करना पड़ेगा. exemption of the certain category for the prior publication, prior communication and prior use from anticipation. ये आपको exemption of the certain category of prior publication, prior communication and prior use for anticipation ये आपको करना पड़ेगा. prior publication ये जो आपको करना पड़ेगा. provision for the secrecy of the invention relevant for the defense purpose. डिफेंस पर्पस के कोई भी
इन्वेंशन है उसमें आपको सेक्रेसी मेंटेन करना होगा। डिफेंस पर्पस में कोई भी चीज का, इसरो का, डीआरडीओ का, कोई भी चीज बाहर, कोई भी पेपर बाहर लाना मना है। कोई भी आदमी आपको डीआरडीओ का, डिफेंस का कोई भी चीज सेक्रेट पेपर आपको नहीं बताएगा। ये आपको सेक्रेसी मेंटेन करना, उसका सेक्रेसी ऑफ इन्वेंशन में आपको जरूरी है। ये सेक्रेसी इन्वेंशन आपको जरूरी है। प्रोविजन फॉर यूज ऑफ द इन्वेंशन फॉर द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट और फॉर रिसर्चर इंस्ट्रक्शन टू द पीपल्स। ये यूज ऑफ इन्वेंशन फॉर द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट, ये आपको करना होगा। Reduction in the term of the patent related to the process in subject of the substances capable of being used as a food or medicine or drug। तो ये सारे आपको respect of the substances ये आपको करना पड़ेगा। Enlargement of the ground of the revocation of the patent, ये आपको Patent Act 1970 में आपको revocation of the patent के बारे में और ground के बारे में वो आपको clear आपको दिया हुआ है कि किस ग्राउंड पे आपको रिवोकेशन होगा, ये आपको दिया हुआ है। प्रोविजन ऑफ फॉर नॉन वर्किंग एज ग्राउंड फॉर द कंपल्सरी लाइसेंसेस ऑफ राइट एंड द रिवोकेशन ऑफ द पैटेंट। जो नॉन वर्किंग ग्राउंड है, कंपल्सरी लाइसेंसेस है, लाइसेंसेस ऑफ द राइट है एंड द रिवोकेशन ऑफ द पैटेंट है, ये आपको पैटेंट एक्ट 1970 में आपको दिया हुआ है। Additional power to the central government to use an invention for the purpose of the government including government undertaking, ये आपको दिया हुआ है। एडिशनल पावर क्या क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट का टू यूज एन इन्वेंशन फॉर द पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग अंडरटेकिंग, ये आपको दिया हुआ है। इन्वेंशन ऑफ यूज ऑफ द पेटेंट राइट्स by making restrictive condition in the license agreement or the contract as a void, ये आपको दिया हुआ है। कोई भी पेटेंट एग्रीमेंट का रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन और लाइसेंस एग्रीमेंट वो क्या है। प्रोविजन फॉर अपील टू द हाई कोर्ट ऑन सर्टेन डिसीजन ऑफ द कंट्रोलर, कंट्रोलर का सर्टेन डिसीजन में हाई कोर्ट में आपको ये आपको दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर ओपनिंग ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द पेटेंट ऑफिस, ये आपको दिया हुआ है कि पेटेंट ऑफिस खोलने के लिए ये आपको ब्रांच होना चाहिए। तो ये 16 फीचर्स जो है पेटेंट एक्ट 1970 में आपको दिया हुआ है। पेटेंट एक्ट 1970 का है ना। तो ये फीचर्स आपको, पहला आपको पेटेंट लॉ 1856 में बना था, उसके बाद टाइम टू टाइम मॉडिफाई किया गया और उसके बाद जो है ये पेटेंट एक्ट 1970 में बना जिसमें कि ट्रिप्स का प्रोविजन वो रखा गया था। फिर उसके बाद अमेंडमेंट किया गया 2002 में, 2003 में, 2005 में, है ना। तो ये आपको जो साइलेंट फीचर्स ऑफ द पेटेंट एक्ट 1970 है वो आपको यहां पर आपको मेंशन किया गया है कि पेटेंट एक्ट 1970 में क्या क्या दिया गया है। ये आपको 16 पॉइंट्स आपको फीचर्स आपको दिया हुआ है पेटेंट एक्ट 1970 में। These are the features of the describe the patent act 1970, है ना। तो आज यही दो मैटर रखते हैं, नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर, व्हाट आर द नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर इज देयर एंड व्हाट आर द इंडियन पेटेंट, है ना। तो दो ही टॉपिक आज रखते हैं, फिर आगे करेंगे पेटेंट एक्ट 1970, ये आपके फीचर्स ये आपको दिया हुआ है। मैं अटेंडेंस फिर आपको क्लियर कर देता हूं कि कौन कौन आपके आए हुए हैं। अटेंडेंस फिर आपको क्लियर कर देता हूं। अंकित शर्मा जी 6, चंदन शाह जी 8, हृदय जी 19, कार्तिक प्रासर जी, रामदत्त भट्ट जी 38, ऋषभ नायक, सर राहुल रैगर, राहुल, हाँ राहुल जी 32, राहुल जी। यस सर। सर नेटवर्क प्रॉब्लम थी, वो बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा।
हाँ नहीं कोई नहीं, आप इंफॉर्मेशन दे देंगे फिर हम मेंटेनेंस कर देंगे, है ना। ठीक है सर। रौनक कुमार जी 39, शेखर जी 41, जैनेश चौहान जी 22, हिमांशु कुटीर जी 18, ऋषभ नायक जी 54, रामदत्त भट्ट जी 38, यूनिवर्सिटी का एक मैसेज क्या कह रहे हैं? ग्रुप पे नोटिस आ रखा है, यूनिवर्सिटी का एक नोटिस आ रखा है ग्रुप पे। हाँ हाँ हाँ, तो सर बताना जरा इसके बारे में क्या क्या है, क्या हिसाब है इसमें, क्राइटेरिया दे रखा है मैंने कुछ देखा नंबर नहीं है नोटिस, तो वो यूनिवर्सिटी में आया होगा, तो अब ग्रुप में किसने दिया है नहीं दिया है ये जानकारी नहीं है। जो जो नोटिस होती है ना यूनिवर्सिटी से कॉलेज में आती है, कॉलेज में आपको डायरेक्टर के नाम आती है, और डायरेक्टर के नाम आकर के फिर वो डायरेक्टर के नाम आकर के वो सर्कुलेट होती है, फिर कोई भी नोटिस आएगा तो वो डायरेक्टर के नाम पे आएगा, डायरेक्टर प्रिंसिपल के नाम पे आएगा, फिर कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन को जाएगा, फिर वहां से सर्कुलेट होगा, ऐसे होता है। तो अभी हमें जानकारी नहीं है, जब तक कि वो अंदर से नहीं आता है तो उसके बारे में ऑथेंटिसिटी कहना बड़ा मुश्किल काम है, कि जो भी नोटिस आएगा वो डायरेक्टर प्रिंसिपल के पास आता है, नाम से आता है, तो डायरेक्टर प्रिंसिपल के नाम के आने के बाद वो उधर से कॉलेज से जो आएगा तो वो आपको ऑथेंटिक माना जाएगा कि क्या हो रहा है एकलॉन में, क्या हो रहा है एकलॉन से क्या नोटिस दे रहा है ना। तो यस सर। ये चीजें होती है, यूनिवर्सिटी से डायरेक्टर प्रिंसिपल के नाम पे आएगा कॉलेज में, कॉलेज से कंट्रोलर को भेजा, कंट्रोलर फिर जो है अपने स्टूडेंट को भेजा, या फिर जो है फिर वो स्टाफ को भेजा, है ना। तो वो क्लियर नहीं है क्या, जो वो सिंधु कुमार जी हैं, सिंधु कुमार अभी एग्जामिनेशन वगैरह का देख रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। हाँ तो सिंधु कुमार जी को आप फोन करिए, कोई भी दिक्कत आती है सिंधु कुमार जी को फोन करिए, सिंधु कुमार जी जो है एग्जामिनेशन का देख रहे हैं, है ना। तो सिंधु कुमार जी को फोन करिए तो आपको पता चल जाएगा। तो यही सारे आपके साइलेंट फ्यूचर हैं पेटेंट एक्ट 1970 का, और पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर, नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर आपको ये रहा, है ना। कोई भी जो ह्यूमन का, एनिमल का, प्लांट लाइफ का, हेल्थ के, इन्वायरमेंट का सीरियस काउजेज आपको प्रोड्यूस करता है वो आप पेटेंट नहीं करा सकते हैं, है ना। तो क्या क्या चीज नहीं पेटेंट करा सकते हैं, कोई नेचुरल लॉ है, वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ है, उनके इन्वेंशन के बारे में बताता है, तो वो आप पेटेंट नहीं करा सकते हैं। तो ये आपको ये सारे नॉन पेटेंटेबल मैटर है। कंप्यूटर प्रोग्राम जो टेक्निकल एप्लीकेशन टू इंडस्ट्री और एक कॉम्बिनेशन ऑफ विद द हार्डवेयर, ये पेटेंट नहीं करा सकते, है ना। ए लिटरेरी, ड्रामेटिकल, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क और एनी अदर एस्थेटिक क्रिएशन व्हाट्सएवर इंक्लूडिंग सिनेमैटिक वर्क्स एंड द टेलीविजन प्रोडक्शंस, ये सब नॉन पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर है। टोपोग्राफी ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट,